मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. Okay, so we should start now. In the previous lecture, we have completed part related to invasion and alien species. That is, species which are now growing in our area and migrated or invaded our area. Such a type of large number of species which we have observed or we have studied, and we have called them as a alien species. And we have also studied few of the members from these different types, such as basically most of these are weed species. And we have studied all this part, that is, species is considered as a introduced or not native when it spreads directly or indirectly outside its natural range. इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज के बारे में हम देखना चाहते हैं. पहले हमने इन्वेड कर रहे या बाहर से आए हुए एलियन या फॉरेन स्पीसीज के बारे में देखा था. To detect the invasion, date, history, habitat, and their ecological attributes should be considered in order to evaluate feasibility and effectiveness of the vector. And there are different types of vector. Vector means just it is a shuttle vehicle which carries one thing from one place to other place. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटो रिक्शा से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. सो ऑटो रिक्शा इज आल्सो ए शटल vehicle, or it is a vehicle, or it is just a vehicle. So such a type of vectors are ships, aquaculture activities, biocontrol activities, escape of transported species for following purposes, different types of channels and vector combinations. So due to these different ways, different types of plants migrated from one place to other place, and later on they established themselves with the present climatic condition and invade the entire area, and such a type of plants which are known as the invasions. So we have completed part related to invasions in the earlier lecture. Alien plant also referred to as exotic or introduced or foreign और नॉन इंडिजिनस और नॉन नेटिव, बहुत सारे टर्म यूज किए. देखो टर्म कौन कौन से है. हमने एलियन को ही एक्सोटिक बोले हैं, इंट्रोड्यूस्ड बोले, फॉरेन बोले, नॉन इंडिजिनस, नॉन नेटिव, एंड is one that has been introduced by human intentionally or otherwise through human agency. मतलब इंटेंशनली उसको इंट्रोड्यूस किया गया है या अदरवाइज इंट्रोड्यूस हो गया है, और एक्सीडेंटली फ्रॉम वन रीजन टू अदर, एक रीजन से दूसरी रीजन में. An alien plant that has escaped from its original ecosystem and is reproducing on its own in the regional flora is considered as a naturalized species. Those naturalized aliens that become so successful as to spread in the flora and displace native biota or threat valued environmental, agricultural, or personal resources by damage it causes are considered invasive. यानी जिन स्पेसीज की वजह से इतनी सारी तकलीफ एनवायरनमेंट को होती है, एग्रीकल्चर को होती है, पर्सनल रिसोर्सेज को होती है, एंड दोज विच आर फ्रॉम other countries or other places migrated in our area or brought to our area, and now they have acclimatized themselves or they become invasive. Human being has been transporting animals and plants from one part of world to another part. So that thing also we have studied. Then according to WCMC report, there are large number of species which are described at the global level. India accounts for 8% of global biodiversity, existing only 2.4% land and area of the world. So ये भी चीज हमने लास्ट टाइम देखी है. Biological invasions have captured the attention of scientific community since the 80s decade. 80 से सबसे ज्यादा इसके तरफ लोगों का ध्यान गया है. और our today's topic is important, and that is related to introduction, because in earlier lecture we have studied regarding invasion, how these plants are going to invade, and some of the invasive plants are like Argemone mexicana, Parthenium hysteroporus,
or Ecornia crassipes, and many more such a type of plants which belongs to Amaranthus and Asteraceae, which act as weed plants. They are supposed to be invasive plants. Then now introduction. As far as introduction considered, there are different points under which we are going to study this introduction. Number one, first point is that what is the purpose of plant introduction? Why plants are introduced? For example, I think all of you are well known for fulfilling the overpopulated mouth. It was necessary to improve the yield or to increase the area under cultivation. Second thing was not possible, and for this purpose, improved varieties of plant under cultivation, and these varieties may be brought from different geographical areas. Then procedure of plant introduction. If you desire to cultivate any type of plant in your area, then you have to follow certain procedure to introduce that plant to your area. For example, if you want to introduce XYZ plant or plant it or cultivate it, you have to procure that and you have to find out at least some of its requirement, and later on you are going to cultivate it. Then agencies. For example, at the international level, there are different agencies which are responsible for such a type of introduction of a new species. And these agencies including WWF and other agencies. We will study these later on. Then merits and demerits. What are the merits of introduction and what are the demerits of the introduction? That we are going to study. And achievements. What we have achieved due to introduction of a new plant species to any of the area. So plant introduction is a process of introducing plant or genotype or group of genotype from their own environment to new environment. मतलब जहां है वहां से आप अपने एरिया में उसको लाके कंजर्व कर रहे बोलो, नहीं तो ग्रो कर रहे, दैट इज नथिंग बट द प्लांट इंट्रोडक्शन. क्या आप सभी लोग सुन रहे? हेलो? यस सर. ओके. Yes, sir. Okay. The process of introduction may involve new varieties of crop or the wild relatives of crop species or totally a new crop species for that area or for the area. So remember well, whatever plant introduced is introduced to any particular area on basis of its geographical features or on basis of its characteristic feature. And always it is brought to any particular area, and environmental factors available in that area are going to affect the introduction of the particular species. So introduction may be classified into two categories, that is primary introduction and second one, that is secondary introduction. So let us we have a look what is nothing but the introduction or primary introduction. When introduced variety is well suited to new environment, then it is released for commercial cultivation. मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, शायद आपको पता होगा, potato is more cultivated in the Solan district of Himachal Pradesh. Is it known to you? हेलो, आप लोगों को पता है पोटैटो सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता in the Solan district of Himachal Pradesh. And second thing, I think you might be known, mushroom is cultivated on the large scale in which area of a country? Hello? Anybody? Any village, any city, any district, any province which is more cultivating our mushrooms, pleurotus or our common mushroom or edible mushroom? अगर मालूम नहीं है तो फिर ध्यान में रखो, the Solan district of Himachal Pradesh is much famous for mushroom cultivation. There is a rural cottage industry which is also known as a mushroom industry, and this mushroom industry is available in the Solan district of Himachal Pradesh. मेरा एग्जांपल अलग था, मैं आपको बोल रहा था कि शायद आपको पता होगा पोटैटो ट्यूबर्स आर ब्रॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए पोटैटो को ट्यूबर्स निकाल लेते, और ट्यूबर्स पर जो बर्ड है, these birds are normally used for propagation. आप में से कितने लोगों को पता है कि खुपरी वैरायटी ऑफ पोटैटो इज बैन्ड टू कल्टीवेट इन महाराष्ट्र? हेलो?
Hello. No, There is sir. one variety No, in sir. potato which is known as a Khupri variety, and as far as this Khupri variety considered, it is banned to brought in Maharashtra. Banned है, ban है, वो cultivate करना नहीं है महाराष्ट्र में. And reason behind this is very interesting. This Khupri variety of potato shows presence of Bangdi disease. बांगड़ी डिसीज मतलब पोटैटो ओपन करने के बाद सिर्फ ब्लैक कलर का ये यानी ब्लैक कलर का रिंग दिखती है, एंड सो इट इज नोन एज अ बांगड़ी डिसीज. जस्ट वी विल सी दैट if there is any of such a image. Just a minute. Bangdi disease of potato. ये देख रहा है? हेलो, फिगर दिख रहे हैं? हाँ. क्या आपने पोटैटो में देखा है बाहर से पोटैटो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अंदर ऐसे ब्लॉचेस होते हैं, नहीं तो पूरा सर्कल सिर्फ दिखता है. क्या आपने देखा है ऐसा? हेलो. यस सर. कट किए हुए पोटैटो में आपने देखा होगा बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर डिफरेंट. इसको मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि इट इज बांगड़ी डिसीज. बांगड़ी डिसीज क्यों? रिंग लाइक ऑल एंटायर स्ट्रक्चर हैज बीन फॉर्म्ड. ध्यान में आ रहा है? Hello. Yes, sir. So this is a Bangdi disease of potato which is observed in the Khupri variety of potato from Himachal Pradesh, and hence this variety, ये variety महाराष्ट्र में लाना और cultivate करना इस पर बैन है. So this is the fact. Then we come across another. So when introduced variety is well suited to new environment, then it is released for commercial cultivation without any alteration of a genotype. मतलब variety को कब लाया जाता है? It is introduced to any particular area whenever without any alteration of the genotype and which suits for normal environmental condition. अब example देखो. For example, dark wheat varieties are like Sonera 64, then Lerma Rojo, and dark rice varieties like Taichung, Native 1, IR8 are the examples of primary introduction. मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ. मैं जब भी आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको राइस के कुछ वैरायटीज बताए थे, जिसमें टाइचुंग 1, IR8 और दूसरी वैरायटी बताई थी दैट इज IR8 टाइचुंग IR8 और एक बताई थी रत्नागिरी 24. So you just go through these different dark varieties of wheat like Sonera 64 and Lerma Rajo, and dark varieties of rice like Taichung 8 and IR8 are the examples of primary introduction. मैं फिर से बताता हूँ. Why we plant dark varieties? Hello. Why we supposed to prefer dark varieties of rice for cultivation? हम लोग क्यों राइस के डार्क वैरायटीज कल्टीवेट करना चाहते हैं? रीजन बिहाइंड दिस इज comparatively very simple reason, that is if it has more height then lodging responses should be more, and to avoid it in the most of the region wherever there is heavy rainfall, short or dark varieties are cultivated. हम उसके बाद देखते हैं. Secondary introduction. When the introduced variety is subjected to selection or used in hybridization program with local variety to get the improved varieties with some new character, introduced called as a secondary introduction. Secondary introduction का मतलब क्या है? किसी बाहर की वैरायटी का अपने यहाँ के वैरायटी के साथ आप क्रॉस करना चाहते हैं, or to get or to find out a better improved variety, such a type of introduction is known as secondary introduction. मतलब अपने स्पेसीज के साथ क्रॉस करके. For example, the varieties like Kalyan Sona and Sonalika of wheat. Wheat के varieties दो बहुत important है. एक है कल्याण सोना और दूसरी वैरायटी है मैंने बताया था that is सोनालिका. शायद आप लोगों ने इन दोनों वैरायटी के बारे में सुना होगा. Wheat
has been selected from material introduced from CIMMYT and Mexico. अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो मटेरियल कलेक्ट किया गया उसमें से ये दो वैरायटी that is Sonalika and Kalyan Sona has been developed. Process of plant introduction is successful compliance of two important aspects. Plant introduction की जो process है, it is successful compilation of two important aspects. Successful compilation है, कौन सा है देखो, domestication and acclimatization. हम हमेशा टैक्सोनॉमिस्ट में से प्लांट ब्रीडर को ये दोनों इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, डोमेस्टिकेट करना और एक्लेमेटाइज करना. मैं आपको सिंपल बताता हूँ. सपोज आपने आपके घर में कोई पेट लाया, नया कोई जानवर लाया, तो क्या वो इमीडिएटली आप उससे या वो आपसे फैमिलियर होता है? हेलो, no. You want to live with that organism for a long time, 4 days, 8 days, 15 days, and after that you have some affections with him or vice and versa. So domestication is the process. पहली देखिए हमने introduction, दूसरा domestication. Domesticate करना मतलब क्या है? Normally you are going to adjust yourself to climatic conditions in a new place. आप किसी भी नई जगह जाते हैं तो आप खुद को एडजस्ट कर लेते हैं. वैसे डोमेस्टिकेशन is process of bringing up wild species under cultivation by making them change in behavior suitable for new environment. उसका behavior जो है वो new environment को suitable हो जाता है. Acclimatization is the ability of crop to become adapted to new climatic and edaphic condition. जो नए वाले कंडीशंस है, ऐसे क्लाइमेटिक नए कंडीशंस या सॉइल नए कंडीशंस में खुद को एक्वायर रखना, खुद को वैलिड रखना, ये दिस इज इम्पोर्टेंट. प्रोसेस ऑफ एक्लेमेटाइजेशन लीड टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट अडॉप्टेड जीनोटाइप्स व्हिच डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स. अब ये डिपेंडेंस 3 फैक्टर पे है. फर्स्ट वन ब्रीडिंग सिस्टम, सेकंड वन जेनेटिक वेरिएशन एंड थर्ड वन that is duration of a crop. Now the first one, that is purpose of plant introduction. Why we are going to introduce the plant? The first reason, that is used in agriculture, forestry and industry. For example, your needs are different. You are known with your needs, and those plants which combine more than one different type of a need, these plants are allowed to plant or grow near the nearby area of a house. किंवा घराच्या जवळपासच्या एरियामध्ये किंवा काही ठिकाणी तुम्हाला माहिती असेल ग्रामीण भागात जवळच शेती असते तर अशा ठिकाणी प्लांट केले जातात. देन समटाइम फॉर एस्थेटिक इंटरेस्ट, मतलब दिखने को अच्छा दिखता है, एस्थेटिक्स वैल्यू दिखती, एंड फॉर एस्थेटिक पर्पज आल्सो दे आर ब्रॉट. फॉर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, कभी कभी हम उसको ब्रॉट करते हैं या फॉरेन कंट्रीज को भेजते या वहां से लाते, दैट इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म. For studying origin and distribution, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिन जो है उसका स्टडी करना, उसके लिए भी उसका यूज किया जाता है. सो इन दिस वे द प्लांट इंट्रोड्यूस्ड हैव सर्टेन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. आप सभी लोग सुन रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, जस्ट मिनट. Distribution of crop plant and their various forms in different parts of the world gives an idea of their origin and evolution. Yes, sir. Plant origin और plant evolution की आइडिया कौन देता है? हमने कई बार हमने देखा है कि different types of plant brought to our area from different area. अपने एरिया में बाहर से प्लांट आते हैं, that is from different outside area, and they become acclimatized. जैसे कि मैंने बताया था अर्जिमोन मेक्सिकाना मेक्सिको से रिलेटेड है या साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, लेकिन नाउ इट इज वेल फैमिलियर इन आवर कंट्री, इन ईच एंड एवरी विलेज, अलोंग द रोड साइड, in the broken houses or in such a places, abandoned spaces, this crotalaria is available. अब देखो यूटिलाइजेशन, किस चीज के लिए हम यूटिलाइजेशन करते हैं? डायरेक्ट कमर्शियल यूटिलाइजेशन. एक तो उसका डायरेक्ट कमर्शियल यूटिलाइजेशन होगा.
नहीं तो सिलेक्शन फॉर डिजायरेबल टाइप सिलेक्ट करने के लिए वेरिएबिलिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल करके वो यूज किया जाता है. यूज एज अ डोनर और समथिंग यू वांट टू डोनेट from that material to find out the good quality substance or material. So it should be a good donor. अगर डोनर है तो रेजिस्टेंट टू डिसीज, पेस्ट एंड स्ट्रेस, मतलब किसी भी इंसेक्ट का अटैक आया, किसी पेस्ट का अटैक आया, किसी भी चीज का अटैक आया तो उसको रेजिस्टेंट है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. देन हम नेक्स्ट देखते, रेजिस्टेंस टू डिसीज, पेस्ट और साइट्स. उसके बाद न्यू प्लांट टाइप्स, जो डेवलप हो रहे हैं वो नया प्लांट टाइप डेवलप होना चाहिए. एंड देन डिफरेंट क्वालिटेटिव फीचर्स, मतलब इसके पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था डाइवर्सिटी को, लेकिन अब अगर अभी डाइवर्सिटी बढ़ रही तो ऐसे हालत पे डाइवर्सिटी के साथ साथ उसका एग्जिस्टेंस या इम्पोर्टेंस बढ़ना जरूरी भी है अपने एरिया में. और अपने एरिया में जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं बताता हूँ. सपोज यू वांट टू कल्टिवेट ग्रेप, then you should at least find out what are the requirements of a grape, what type of soil and conditions are required, and you provide these conditions artificially in your field, and then you can grow it. So this is the fact. So this one is idea regarding utilization of plant by different government agencies. Then सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट प्लांट, सर ये काम करेगा कौन. मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैंने बहुत साल तक गाडगिल सर के साथ लेखामेंडा में काम किया. आई हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस फ्रॉम नागपुर, गढ़चिरौली, वर्धा. उसके बाद about 5 villages from Maharashtra, 5 villages from Andhra Pradesh, and 5 villages from Kerala. So I have responsibility of 5 villages from Maharashtra. Next. NBPGR, Central Plant Introduction Agency in India is National Bureau of Plant Genetics. अब सेंट्रल एजेंसी कौन है, तो सेंट्रल एजेंसी इज National Bureau of Plant Genetic Resources, that is NBPGR, which has its headquarters at New Delhi but has substations for testing the plant material. NBPGR के बारे में आपको पता है. NBPGR actively working in the storage of germplasm as well as storage of genetic resources of different plant species for future use. It helps to access the introduced plant material, coordinates the work of other agencies, and imparts training in plant collection, introduction and maintenance in India. इसीलिए आपको पहले कुछ एजेंसीज के बारे में बताया था, और फर्स्ट एजेंसी इज NBPGR और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस. उसके बाद सबस्टेशंस अंडर NBPGR. NBPGR का हेडक्वार्टर है एट द दिल्ली, एंड इट हैज सबस्टेशंस एट different places such as Simla, Jodhpur, Amravati, Kanyakumari and Shillong. Now other agencies engaging for this purpose were Forest Research Institute, Dehradun. मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, कभी भी मौका आया तो देहरादून अवश्य जाना और फॉरेस्ट कम्युनिटीज या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देखना. उसके बाद बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. So these are the two major institutes which are known regarding research in a particular subject as well as conditions for introduction of different types of plants. Different central research institute as well as agricultural universities play the role for collection, introduction and nomenclature of germplasm of crop plants. Next देखते हैं, what are the different merits and demerits of plant introduction. अब merit देखो, it provides entirely new crop plant to place. मतलब इंट्रोडक्शन से क्या होता है, टोटली नो क्रॉप प्लांट, न्यू क्रॉप प्लांट अपनी जगह पे आता है. सुपीरियर वैरायटी में बी ओरिजिनेटेड आफ्टर डायरेक्टली और आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड. आप ध्यान में रखो कि आप जो भी कोई स्पेसीज, आप अगर समझ लो कि हाइब्रिड सीड मार्केट में परचेस करने गए, तो यू आर आस्किंग टू दैट वेंडर वेदर इट इज वैलिड. उसके बाद आप उसकी चेक करते एक्सपायरी, उसके बाद आप चेक करते उसकी वैलिडिटी,
and you make sure that whatever plant brought by you or seeds brought by you are true. Germplasm collection, maintenance, and protoplasm protection of genetic variation are possible throughout the way of introduction and exploration. Exploration किया आपने, introduction किया, तो you should have good quality work regarding germplasm selection, collection of a material, then maintenance of the criteria, and whatever that is जो भी मटेरियल है उसको कंजर्व किया जाता है. Introduction of some varieties to new areas by to protect them from some different area. नए वैरायटी जो आ रहे हैं उनको बाहर से आए हुए प्लांट से थोड़ा सा आइसोलेट रखना, थोड़ा सा उनको प्रोटेक्ट करना. सो दिस टेक्निक मस्ट बी आल्सो नोन टू यू. उसके बाद डीमेरिट क्या है देखते हैं. द डीमेरिट ऑफ or disadvantages of associated with plant introduction are introduction of weed and disease as well as pest. मतलब कोई एक प्लांट लेके आता है तब बहुत सारे सीड्स के माइन्यूट है, माइनर है, तो क्या they come with that material and establish themselves there. Many insect pests like potato tuber, moth, woolly aphids of apple, fluctuated scales of citrus were introduced in India along with plant introduction. बहुत सारे अलग अलग type of plants है. In those plants which are brought to our country by one or different way. One of the important example is different species of our citrus or mandarin grove. बिकॉज आपने देखा होगा कागदी लिंबू, साधे लिंबू, गोड लिंबू आणि काय वेगवेगळे प्रकार म्हणतात ते असतात. तसंच कीड लिंबू नावाचा जो प्रकार आहे, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइप. However, is in the most just a minute, many insect pests like predators, tube moth, woolly apples, apple aphids. उसके बाद fluted scale of critter were introduced in India along with the plant introduction. Plant के introduction के साथ साथ बहुत सारे animal के भी species अपने country में लाए गए, और these are acclimatized in our country even though it was not proper or not legal, it was later on finalized. ठीक है, next देखते. Examples of achievement are listed below. Achievements क्या है उसके बारे में. The crops like potato, maize, groundnut, officials, chilies, coffee, rubber, guava, grape, sorghum. उसके बाद many ornamentals like gulmohar, Parsi, Appalachian. उसके बाद sahiwa, assistant, all have been introduced in India from time to time. मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसमें जो प्लांट ब्रॉट करते हैं उनको नॉर्मली बहुत ज्यादा यानी ग्रो करने की जरूरत नहीं होती. 5-6 फीट तक जस्ट अप टू अपना कंपाउंड के बाहर क्या शुरू है आपको कोई सब तकलीफ नहीं है. वैसे कंपाउंड पर जो कुछ प्लांट आप लगाते हैं वैसे और भी प्लांट आपको लगाना है. सो the crop like potato, maize, groundnut, chili, coffee, rubber, guava, grape, pineapple, many ornamentals like gulmohar, phlox, salvia, aster, all has been introduced in India from outside. This list can be elaborated much more. मतलब बाहर से लाए हुए प्लांट्स की लिस्ट बढ़ सकती है. न्यू क्रॉप वैरायटीज, अब इसके बारे में बाद में न्यू क्रॉप वैरायटीज, देयर आर सर्टेन पॉइंट. For example, direct multiplication and release of new varieties. Dark wheat variety called as Sonera 64 and Lima Rajo, and dark rice varieties TN1 and IR8 are introduced in India and used directly. There are many more examples of direct release of varieties in other crop plants like oat, soybean, tomato, cauliflower, onion, etc. मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार जांच के परख के वो इंट्रोड्यूस की गई. There are several examples in case of which varieties are introduced to our country or our geographical area.
हम देखते सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल वैरायटी, डिजायरेबल वैरायटी का सिलेक्शन, डिजायरेबल मतलब जो चाहिए ऐसा कंफर्म है, सो इट इज डिजायरेबल, डिजायरेबल वैरायटीज. Many varieties has come up after selection from introduced varieties. Introduced variety जो है उनका selection होने के बाद ये variety आए. That is Kalyan Sona, Sonalika were selected after introduction of मेक्सिकन वैरायटीज. मेक्सिकन वैरायटी जब अपने यहाँ आए तो इन मेक्सिकन वैरायटीज में से कल्याण सोना और IR8 वैरायटी ऑफ राइस हैज बीन इवॉल्व, इवोल्यूशन हुआ है उसका. एग्जांपल्स ऑफ अचीवमेंट्स आर लिस्टेड बिलो. अब व्हाट आर द अचीवमेंट्स? नंबर 1, क्रॉप लाइक पोटैटो, मेज, ग्राउंडनट, चिली, कॉफी, रबर, गावा, ग्रेप, ये सब इंट्रोड्यूस्ड प्लांट है, हमने देखा है. अब हम introduced varieties as a donor in hybridization program. जो भी प्लांट स्पीसीज अपने एरिया में इंट्रोड्यूस हो जाती है उसकी सुपीरियरिटी देन एग्जिस्टिंग वैरायटीज. इट शुड हैव सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देन एग्जिस्टिंग वैरायटी, देन एंड देन ओनली इट इज cultivated or allowed to cultivate or introduce. May be used as a donor for disease resistance or pest resistance or stress resistance for plant type and quality characteristic features in hybridization. In case of rice, dark gene from TN1 variety and IR8 has been used for developing. मतलब कई बार क्या होता है कि पूरी वैरायटी एक्सेप्ट ना करते हुए उसका कुछ जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक पार्ट हैज बीन एक्सेप्टेड. All the sugar cane varieties has been derived from introduced noble cane variety of Saccharum officinarum. Saccharum officinarum या sugar cane के बहुत सारे वैरायटी जो अपने यहाँ है, बहुत सारे वैरायटीज है, आप सभी लोगों को मालूम हुए होंगे. All these varieties are introduced variety. Then म्यूटेशन ब्रीडिंग, शायद आपको पता होगा कि जब भी कभी ऑल पॉसिबल मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग वैरायटी खत्म हो जाते हैं तो ओनली रिमेनिंग मेथड इज म्यूटेशन ब्रीडिंग. देन इट मे बी आइदर फिजिकल और केमिकल और एनी अदर टाइप ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट. म्यूटेशन ब्रीडिंग, if the introduced material is agronomically superior but lacking a few character, may be treated with mutagen to rectify the defect. जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है वो रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्रॉस करते हैं. फॉर एग्जांपल Sonera 64 introduced with red color grains not accepted by the farmer. शायद आपको पता होगा रेड कलर का व्हीट है तो कोई पसंद नहीं करता. इट शुड बी विथ एम्बर कलर. For example, Sonera 64 introduced with red color grains not accepted by the farmer, but new mutagenic product, that is Sharbati Sonera with amber color grain, was produced by MS Swaminathan by gamma ray treatment. यानी gamma ray treatment स्वामीनाथन ने दी किसको? हेलो. Which material was treated by Dr. Swaminathan? देखो मैं लाइन पढ़ता हूं फिर से. फॉर एग्जाम्पल Sonera 64 इंट्रोड्यूस्ड विथ रेड कलर ग्रेन नॉट एक्सेप्टेड बाय द फार्मर. द न्यू म्यूटाजेनिक प्रोडक्ट शर्बती Sonera विथ एम्बर कलर ग्रेन वाज प्रोड्यूस्ड बाय MS स्वामीनाथन बाय गैमा रेडिएशन. मतलब MS स्वामीनाथन ने एम्बर कलर का व्हीट जो प्रोड्यूस किया दैट इज Sonera 64 एंड दैट वाज द इम्पोर्टेंट. अब इसके बाद मैं थोड़ा सा रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, मेरे लिए जो जरूरी था वो टॉपिक खत्म हो गया. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड इफ इट gets established then it becomes plant of that area only. So with this introduction and topic related to invasion introduction topic we have completed. And the next topic remaining is, क्या है next topic? हेलो, कोई बता सकता है?
लोकल प्लांट डाइवर्सिटी एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आपके ध्यान में आ रहा है? हेलो? हाँ सर। So our new topic is local plant diversity and its role in socio-economic aspect. So we observe that there are variety of different types of plant species available in our area. Let us have a list of these plant species. मैं एक बताता हूँ, बाद में हम देखेंगे. First one, bamboo. For example, all of you are well known. Bamboo is Arundina species or Dendrocalamus bambusa. It grows into offshoots. म्हणजे स्वतःला ज्याला त्याला कोंब फुटतात, त्याला तुमच्याकडे मला वाटतं म्हणतात डिरा म्हणजे यंग अपायकल ग्रोइंग पार्ट. So this young apical growing part of bamboo, which is used in tribal areas such as Vaste, and that is used as a food material. अर्थात तुम्ही नागपूरमध्ये सुद्धा बघितलं असेल, फूड मटेरियल म्हणून मार्केटमध्ये वास्ते येतात. वास्ते म्हणजे काय? तर बांबूचे कोवळे ऑफशूट्स. मैं आपको फिगर भी साइमल्टेनियसली दिखा देता. हेलो हेलो? यस सर. हेलो? एक सेकंड, मेरा शायद माउस हैंग हो रहा है. So in most cases such as introductions are unsuccessful, but when they do become established and just a minute, मैं ये नहीं ये कर रहा था, हम देख रहे थे that is regarding, हम देख रहे थे लोकल प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में. नाउ एज फार एज लोकल प्लांट डाइवर्सिटी कंसिडर, क्या मैंने आप लोगों को कुछ प्रिपरेशन बताया था? हेलो? यस सर. हाँ, क्या बताया था? यस, एनीबॉडी? अपने एरिया में जो प्लांट्स है उनके प्लांट जो है उनका ओके, अपने एरिया में जो प्लांट्स है जिसका कोई सोशल इंपॉर्टेंस है, ऐसे प्लांट्स की लिस्ट बनाने के लिए बताया था. चलो अपन एक देख लेते. अंकिता पांडे है? पांडे? यस सर. हाँ, पांडे, प्लांट की लिस्ट है आपकी? नहीं सर, अभी पास में नहीं है. ओके, घर में नहीं हूँ तो सर. लोकल प्लांट की लिस्ट आप सभी लोगों को बताना है. जिनके पास है वो तैयार रखो. नेक्स्ट देखते, दुर्गेश्वरी तांबे. हेलो तांबे, क्या आपकी लोकल प्लांट की लिस्ट रेडी है? दुर्गेश्वरी नहीं है. चलो नेक्स्ट देखते, श्वेता नगराळे. सर अभी बनाई है. हाँ बोलो बोलो. सर अभी बनाई नहीं है. अरे तो आपको बताया था ना कि लिस्ट बना दो, हमें नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कवर करना है. चलो नेक्स्ट देखते, श्वेता नगराळे. काजल चौधरी, बताओ आपकी रेडी है क्या लिस्ट? हेलो? रुचिका नहीं है. मोहिनी राहंगडाले. यस सर. हाँ, आपकी लिस्ट है क्या रेडी? यस सर. हाँ बताओ, कुछ प्लांट के नाम बता दो. सर, आम मैग्निफेरा इंडिका, हाँ पपाया, हाँ सीताफल, हाँ जामुन, हाँ आंवला, हाँ नींबू है, पारिजात, हाँ तुलसी, अदरक, हल्दी सब है सर. हाँ, तो कितने हैं बता दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दो. 16 के नाम है एक बार रिपीट कर लो सभी सभी नाम. सर. जामुन, बॉटनिकल नेम, साइजिन. नहीं, वो बोटेनिकल बता दो या कोई एक बता दो, चलता है, कोई इशू नहीं है. मुझे सिर्फ लिस्ट में नाम बता दो आपने. जामुन, हाँ आम, मुंगना, हाँ सीताफल, पपीता, जाम, तुलसी, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, सूरन, तुवल, लौकी, आंवला, नींबू और पारिजात. चलो, इसमें से आपने लिस्ट जो बनाई है उसमें से मैं सिर्फ आपके 4 प्लांट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सीताफल या कस्टर्ड एप्पल.
दूसरा है Yes, sir. जामुन, तीसरा है मोंगना और चौथा है पपीता। आप बोलेंगे सर आपने ये 4 ही क्यों किए, बाकी तो प्लांट हमारे इसमें है। रिमेंबर ऑल दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री और इवन दे मे बी अवेलेबल इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बट आउट ऑफ दीज ऑल 17-18 plants I have selected only 4 plants because, for example, sitapal which are cultivated on the large scale are available on the large scale in the पवनी एरिया ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्रामधल्या पवनीमध्ये आणि औरंगाबाद जवळच्या दौलताबाद एरियामध्ये सीताफळ लार्ज स्केल वरती दिसतात. इवन आय थिंक इट इज बेस्ट नोन टू यू इन द एरियाज ऑफ युअर मेळघाट आणि तुम्ही अमरावती रोडला गेले तर रोड साईडला सीताफळ विक्री करताना लोक दिसतील. सो इन दीज डिफरंट एरिया सीताफळ आर अवेलेबल. दे आर सोर्सेस ऑफ फूड मटेरियल, they are sources of energy and supposed to be symbol of prosperity, and for this purpose sitapal is used by different peoples. Besides that, I think you might be known seeds of sitapal which are used as rodenticide. क्या आपको पता है? हेलो, सीताफल Yes, sir. सीड्स का यूज क्या करते मालूम है? रोडेंटिसाइड्स करके यूज करते हैं, कई जगह पे रैट पॉइजनिंग करके यूज करते हैं, लेकिन दे आर बेस्ट यूज अगेंस्ट द रेमेडी अगेंस्ट द लाइसेस एंड बग्स. लाइसेस आणि बग म्हणजे काय? एनीबडी? Sir. हाँ, Sir, जी. बालों में जो रहते हैं that is lices and bugs. मला वाटतं त्याला काय म्हणतात, केसामध्ये उवा होणे. सो लाइसेस एंड बग्स. सो seeds of custard apple are applied to forehead or applied to head for removing or disturbing lices and bugs. So for this purpose, I have included sitapal from his variety. Then jamun, which has several characteristic features. Out of that, thirst removing is interesting, and other is seeds or powder of seed, which is used for purpose to cure the diabetes, and for this purpose. Jambul is also cultivated. In which part of Vidarbha Jambul is more? Hello? Yes, sir. Hello? विदर्भातल्या कोणत्या भागामध्ये जांभूळ मिळतो बघायला किंवा लार्ज स्केल वरती आहे? म्हणजे फक्त 2-4 झाडं आहेत किंवा 2-4 बिया आहेत किंवा 10-20 फळं लागली म्हणजे तो प्रिडॉमिनेंट झाला नाही. प्रिडॉमिनेंटली जामुन इज अवेलेबल इन वन प्लेस ऑफ महाराष्ट्र, दॅट इज सपोज टू बी कुरखेडा. गडचिरोली जिल्ह्यातला जो कुरखेडा आहे तिथं जांभळं लार्ज स्केल वरती पिकतात. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल टोल्ड बाय मोहिनी इज दॅट इज मोंगना और इट इज नोन एज अ, मोंगण्याचं नाव काय आहे? हॅलो, शेवगा. शेवगा किंवा बोटॅनिकल नेम? बोटॅनिकल नेम विसरलं का? क्या याद में ही नहीं है? एक मिनट हम देख लेते हैं. मेरे भी सामने है लेकिन अभी ध्यान में नहीं आएगा. कोई बता सकता है? Sir, Moringa oleifera. Yes, it's Moringa oleifera. So botanical name of Moringa is Moringa oleifera, and or its common name is drumstick. The pods or legumes which are used for vegetable purpose, even leaves shows presence of good quantity of iron, and for this purpose it is cultivated on the large scale. चलो हम नेक्स्ट प्लांट इन्होंने जो बताया था उसके तरफ जाते. मोहिनी हैज टोल्ड next plant that is papita. I think it is best known to you in Umred area near Nagpur. Umred जवळचं मला वाटते कोणतं गाव आहे उमरेड जवळचं, त्या चक्री घाटच्या अगोदरचं गाव आहे, which is much famous for cultivation of papita. Or even it is mostly, if you observe on the Wardha road near the Wardha city, वर्धा रोड वर साधारणपणे सेलू वगैरे गावापर्यंत लार्ज स्केल वरती रोड साईडला
पपई प्लांटेशन अँड पपई डिस्ट्रीब्युशन हे दोन्ही प्रकार बघायला मिळतात. सो इट इज नोन टू यू. सो दीज 4 प्लांट्स वेर इंक्लूडेड बाय मोहिनी. नेक्स्ट कौन बता रहा है मोहिनी के बाद में? काजल? हेलो, काजल है? नहीं. श्वेता है? नहीं. रुचिका वासनिक? नहीं है. यस हाँ, यस सर. रुचिका आप बता सकती? यस सर. आपकी लिस्ट है? यस सर. हाँ बताओ कोई प्लांट्स. सर फर्स्ट तुलसी, हाँ. सेकंड जास्वंद, हम्म. and third custard apple रामफल, हम्म. and मनी प्लांट गोल्डन पोच, हाँ. और और मीठा नीम. मीठा नीम मतलब कड़ी पत्ता. हाँ. और देखो मैं आप सभी लोगों को बार बार बता रहा हूँ. हाँ, मैं फिर से बताता हूँ आप सभी लोगों को. प्लांट डाइवर्सिटी फ्रॉम द लोकल एरिया एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. I think it is best known to you. Plant has different importances, and out of that, plants which are used for social purpose or social activities and cultural activities are important. अब इसमें अभी अभी शायद रुचिका ने बताया था. उसमें से हमने रामफल और कड़ी पत्ता ये दोनों तो ही प्लांट लिए. शायद आपको पता है रामफल, हनुमान फल, सीताफल, these are important food plants of our area. So we have included Ramphal and Sitapur as well as simultaneously Kadi Patta, because Kadi Patta is supposed to be best spice of kitchen, and it has also number of medicinal and economical values. For that, this plant is also considered. अब रुचिका, हर्षा कोलारे है? यस सर. हाँ बताओ आपके कोई प्लांट है तो. सर नीम, जासवन और स्वास्तिक का फूल सर. नहीं, ये तीनों भी प्लांट ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जासवंद और स्वस्तिक दो दे प्रेजेंट एवरीवेयर, दे डोंट हैव एनी मच मोर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. हमें ये देखना है कि दैट प्लांट शुड हैव सिग्निफिकेंस विद द लोकल पीपल. लोकल पीपल की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करता होगा, नहीं तो एनी it should be used in any proper ceremony or any proper फंक्शन आल्सो. जसं खाण्याची पानं तुम्ही फंक्शन मध्ये खाण्याकरता किंवा ऑफर करण्याकरता किंवा तोरण बांधण्याकरता वापरता. आंब्याच्या पानांचं तोरण केलं जातं. सो जस्ट लाईक दॅट प्लांट शुड बी लोकल, वाइडली अवेलेबल, एंड इट शुड हैव इट्स कमर्शियल वैल्यू और इम्पोर्टेंस. आ रहा है ध्यान में? इसलिए रुचिका का पत्ता था, उसमें से मैंने एक ही एक्सेप्ट किया, रामफल और कड़ी पत्ता. नेक्स्ट बताओ और कोई. सर झेंडू. झेंडू, टॅजिटस इरेक्टा किंवा झेंडू. ठीक आहे, झेंडू घेऊ शकतो. दसरा सीझन मध्ये लार्ज स्केल वरती लागतो. झेंडूच्या लीफ पासून क्रिसॅन्थेमम किंवा झेंडूच्या लीफ पासून पायरिथ्रिन इज एक्स्ट्रॅक्टेड. तुम्हाला माहिती असेल, गार्डन मध्ये मच्छर खूप झाले असेल, जात असाल तर तिथं तुम्ही काय करता, ह्याचा कोणतं प्लांट आता तुम्ही सांगितलं होतं? झेंडू. हा, झेंडूचे लीफ क्रश करून लावता, बिकॉज द स्मेल अवेलेबल फ्रॉम झेंडू लीफ इज एबनॉक्सियस टू फ्लाइंग इंसेक्ट. अच्छा, उसके बाद अभी तेजस्विनी आपकी कोई लिस्ट है? तेजस्विनी, वही थे तो सबने बता दिए. सबने बता दी वही है. क्यों ऑलवेज डिसाइड किया कि सब लोगों ने मिलके? नहीं सर, वो कॉमन प्लांट्स है ना, इसीलिए. अच्छा, और कोई दूसरा प्लांट और कोई है अभी लिस्ट बताने वाला? फॉर एग्जाम्पल सुहाना. यस सर. हाँ, आप बता सकती कोई प्लांट? हाँ सर, यही प्लांट्स है. चीकू. अच्छा, चलो मोगरा.
कीर्ति मोहुर्ले, सर आमला, हाँ उंबर, हाँ धोपा, सर हाँ, धोपा आपने बताया था। कोलोकेसिया, एक मिनट मैं कोलोकेसिया लेता हूँ। हाँ एंड उंबर हो गया, धोपा, सर माटाड़ू पता है आपको? मटारो मतलब डायोस्कोरिया ले लिया, चलो डायोस्कोरिया। तो अभी देखो मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि यू शुड बी वेल अवेयर विद द फ्लोरा फ्रॉम रूरल एरिया और एडजॉइनिंग एरिया, वन थिंग, and second thing you should be also directly or indirectly knows with economical value of that plant. अब उसके बाद नेक्स्ट कौन है? मुस्कान के बाद ज्योति। ज्योति, कैन यू टेल मी नेम ऑफ एनी फ्यू प्लांट्स? यस सर। हाँ बता दो, लेकिन वो कैसे mango- चाहिए? People should be have importance of that plant and that plant should be used for various purposes. और ऐसा बता दो, चलो। सर जो खाने वाले हैं वो तो 2-3 ही है, बाकी सारे फ्लावरिंग प्लांट ही है। तो बता दो, नाम बता दो। यस सर, पेल्टोफोरम, क्लाइटोरिया, टर्नेटा, यूकेलिप्टस, अभी एक यूफोर्बिया। बता दो कि इनका नाम, इनका यूज क्या है हमें? सर जैसे यूकेलिप्टस सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है यूकेलिप्टस में। लेकिन क्या हम इसको, नहीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसको, ये सब ठीक है, लेकिन क्या हम इसको साल भर के लिए डिस्प्ले करके रख रहे हैं? मतलब ये प्लांट की ये नहीं, मतलब आपको ये देखना है कि दैट प्लांट शुड हैव एटलीस्ट सम पार्ट्स व्हिच आर यूजफुल फॉर इट्स प्रेजेंस। सो ऐसे प्लांट्स तो इन्होंने बताया था प्लांट कौन सा? कोलोकेसिया। कोलोकेसिया मतलब अड़ू या धोपा बताया था। उसके बाद श्वेता नगराल, श्वेता ठाकुर, सागर ठाकुरे। हेलो सागर, सागर है क्या? सो दे चलो जयंत, जयंत हाँ सर। कुछ प्लांट बता सकते हैं नाम कुछ प्लांट हाँ। के? बाम्बू, सागवान, सागवान, डांगरू, ओके, बाबूड़, पड़स, पळस, नीम, ऑस्ट्रेलियन बाबूड़। अब मुझे थोड़ा ऑस्ट्रेलियन बाबुल क्यों यूज करते हैं बता दो। बाकी प्लांट के लिए नहीं पूछा मैंने, बिकॉज these plants are normally used for different purpose, but what is the use of Australian बाबुल? समर में जब वो एनिमल्स रहते हैं ना सर, जिनके घरों में, उनके लिए एनिमल, हाँ उनके लिए जो छाव, मतलब मराठी में मांडव बोलते हैं, हाँ हाँ, उसके ऊपर उसके जो ये रहते हैं अपने ब्रांचेस, वो ऊपर लगाते हैं, तो उनसे उनके लिए छाव मिलती है। मतलब that should have some importance, but ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, बहुत इको कल्चर से या सोशल कल्चर से बहुत रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इट हैज अल्टरनेटिव आल्सो। वही यूज करते हैं ऐसा नहीं है, बाकी भी यूज करते हैं ना। ओके, तो मैं आपको कुछ प्लांट की लिस्ट बताता हूँ। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड सम लिस्ट, लेकिन आपको आपकी खुद की लिस्ट कल बना के लेके आना है। कल हमें ये टॉपिक खत्म करना है। मैं बताता हूँ, बाम्बू, बाम्बू का ऑफशूट्स जो हम बोलते हैं उसके बाम्बू वास्ते, that is used for purpose of vegetable. Then capsicum and a mirchi, out of mirchi, Bhivapuri mirchi, which is much famous for under cultivation. Then turmeric, I think you are better known with the Vaigao variety of a turmeric. शायद आपको पता है। हेलो, वायगाव हळद म्हणतो because it shows presence of good quantity of curcumin. वायगाव कहाँ है, किसी को पता है? हेलो हेलो, समुद्रपुर साइड सर। समुद्रपुर साइड में वायगाव है, एंड वायगाव में जो टर्मरिक यानी कल्टीवेट करते हैं, इट हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट हैज गुड क्वांटिटी ऑफ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज, एंड दैट्स व्हाई वायगाव टर्मरिक इज मच फेमस। सो टर्मरिक, उसके बाद मैं बताता हूँ
टर्मरिक, उसके बाद टिक. I think no need to explain much more regarding the tick. Then Oryza sativa, for example, cultivated varieties of Oryza are like Chinnor and HMT. Then Maduka longifolia. Maduka longifolia belongs to family Sapotaceae and its common name is Mahua. I think most of you might be better known in the tribal areas. Mahua is known as Mahua mauli or Mother Mahua, because it fulfills all the requirements of local people. Then कुकुमिस, जिसमें आप बोलते खरबूज, तरबूज, डांगरू, करटोली, करांदे किंवा मटारू, खोलेरिना और कुड़ा, हदगा, सफेद मुसली, काली मुसली, एंड्रोग्राफिस, डुम्बर साथिया, वास्ते, ऑरेंजेस, कॉटन, ट्राइडेक्स, बॉसवेलिया, अमरताश, कपैरिस झेलियानिका, देन माइटिनस सेनिगेलेंसिस और भारकड़, कोक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम या येलो सिल्क कॉटन, टर्मिनालिया बेलेरिका, टर्मिनालिया चिब्युला, ऑक्सिनिया, इम्लिका, पळस किंवा ढाक, कजानस, देन कॅम्पस, एक मिनिट, टेरोकार्पस मार्सुपियम, उसके बाद बिब्बा, सारोही, कुरकुलियागो, देन कराया अर्बोरिया, साइरा, कॉर्डिपोलिया, लीना इंडिका, सोइमेडिया, फेब्रिफ्यूजा, कॉक्युलस हिरसुटस, वर्ड, उंबर, पिंपल, मुरडशेंग, कोलोसाइंथ आणि असे कितीतरी प्लांट सांगता येतील which are very important, and these are cultivated in the different areas. So this one is a list of plants. So we are going to complete this part in the next lecture, और next lecture में हम अपने तीनों यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं. आप थोड़ा सा इसके तरफ जस्ट 1-2 मिनट के लिए ध्यान दे दो. मुझे मालूम है आपको किसका लेक्चर है अभी. हेलो, थोड़ा स्पेशल का है. नाही सर. जनरल. थोड़ा सा जनरल का. काळकर मॅम. ओके, चलो मैं 2 मिनट में खत्म करता. कैप्सिकम एनम, भिवापुरी मिर्ची, मिर्ची के दोनों प्लांट भी दिखाए, ग्रीन और रेड कलर. लॅथिरस सटायवस म्हणजे याला तुम्ही काय म्हणता, लाखोरी, लाकडाळ. हा, which is used for different purposes, but main purpose is it is used as a substitute to legume ना substitute म्हणून, and for production of various dishes. Then bamboo वास्ते, bamboo offshoots का मैंने बताया था. There are various products, food products which are prepared from bamboo. उसके बाद टर्मरिक मैंने वाइगा हर्ब का बताया था, which has more curcumin percentage. Then next देखो, टिक्टोना ग्रैंडिस या सागवान, नो नीड टू एक्सप्लेन मच मोर. डायोस्पायरॉस मेलानोझायलॉन या बिब्बा. ओरायझा सटावा म्हणजे तांदूळ, वेगवेगळ्या प्रकारचा तांदूळ. बिकॉज आय थिंक इट इज बेस्ट नोन टू यू. अक्षदा देणे हा प्रकार तुम्हाला माहिती असेल, म्हणजे अगदी घरातल्या चांगल्या प्रत्येक कामाकरता अक्षदा काढून ठेवल्या जातात. हळद कुंकू अक्षदा वाहिल्या जातात देवाला. डायोस्पायरॉस मेलानोझायलॉन म्हणजे जस्ट मिनिट, इथं नाव चुकून आलेलं आहे. डायोस्पायरॉस मेलानोझायलॉनचा अर्थ होतो तेंदूपत्ता, आणि इथं नाव पाहिजे आहे मधुका लॉंगिफोलिया और महुआ. वरचा फक्त हे झालेला आहे, कॉपी झालेला आहे. इथं मधुका, इट शुड बी मधुका लॉंगिफोलिया. एक मिनिट, स्पेलिंग करेक्शन बघू. लॉंगिफोलिया, मधुका लॉंगिफोलिया. ठीक है, तो मैं भी आपके साथ मैं भी लिस्ट बनाऊंगा, और इस लिस्ट से कुछ प्लांट्स को आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. जैसे मैंने आज 1, 2, 3 यानी करीबन हर प्लेट पे 4 है, तो 12 प्लांट का डिस्क्रिप्शन मैं बना रहा हूँ, और भी बनाएंगे. एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू फिनिश अवर मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज बाय टुमारो. ठीक है. हेलो. यस सर. अभी रुकते हैं. आप लोग अपनी अपनी लिस्ट कल लेके आना. जरूरी नहीं है कि सबकी देखना चाहिए. यू कॅन इन्क्लूड एनी प्लांट. जसं बोर आहे, बोराचं संक्रांतीला हे वापरतात, काय देतो म्हणतो ना, काय देतात संक्रांतीला एकमेकाला ऑफर करतात, त्यांना काय म्हणतात, वाण. यस, वाण देतात. सो इट इज सपोज टू बी सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो वैसे आप किसी भी प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि दोज विच आर इम्पोर्टेंट. So with this
I would like to stop here. आज अपना ये है क्या, मत्ते मत्ते है, मत्ते? यस सर। मत्ते Yes, है sir. क्या? यस सर। मत्ते आप कहाँ से हो? गोंदिया से? सर साकोली भंडारा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, साकोली से है। ठीक है चलो। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में देखते। कल अपनी अपनी लिस्ट लेके आना, लेकिन कल विदाउट फेल यू हैव टू ब्रॉट योर लिस्ट फॉर टुमारोज लेक्चर। ओके फाइन, चलो लीव हो जाओ, एक लीव हो जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू।